Hello and welcome to UPSC Scholar. Today we'll be discussing the current affairs for the last 1 week, that is 29th May to 4th of June. It would be strictly restricted to Indian Express only, and we will be focusing only from the UPSC perspective. So let's begin. My name is Sachin. We'll be doing separately subject wise. The first current affairs is from polity. We'll be doing it in bilingual, both Hindi and English. तो जो पहला हमारा न्यूज़ है वो था ऑब्वियसली 28th of May new parliament was inaugurated in India. Keeping aside all the political controversies that happened, we will be focusing only the things that are important for our exam. The first and the main was Sengol. It was it is a golden scepter that we all know. You would have seen it. There is this Nandi bull above it, and it was the symbol of India's sovereignty and its cultural heritage, as per the government. Chola Empire. It was there are records that are found in the Chola empires that whenever the kings transferred their power or whenever the new king succeeded each other, जब भी कोई नया राजा आता था तो Sengol was a sign of a transfer of power. So this has been reinstated in the parliament somewhere here, somewhere here in the parliament. You all might have seen it. Oh, sorry, here. This is it. You all might have seen it on the photos. And getting to the basics of it, the parliament was made by two of these architects, Edward Lutyens and Herbert Baker. And one more thing, I'll be making a separate video on parliament क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें काफी सारे नए नए फीचर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लेकर काफी इम्पोर्टेंट है like that Akhand Bharat mural that has been placed in there, that pendulum that has been placed in there, and a lot of scriptures, I would say, that have been placed in there. So you will be seeing a new video very soon, most probably by this Sunday, that is 11th of June. So moving on to our next news, the Manipur violence that has been in news for last 1 month. See, there is daily commentary going on. रोज न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है कि इस ट्राइब ने अब ऐसे सेटलमेंट करने को कहा है और ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं. That is not important for us. The main thing is हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्या है इस न्यूज़ के. तो देखो भाई, इसकी दो पार्टीज हैं, दैट इज मीती एंड कुकी, दैट आर मेनली इन्वॉल्व. देयर आर अदर टाइप्स आल्सो दैट आर प्रोटेस्टिंग, बट जो मेन पार्टीज हैं वो है मीती और कुकी. क्यों है? क्योंकि मीती ट्राइब को रिसेंटली एसटी का स्टेटस दिया गया है बाय द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर. And Kuki and Meiti tribe, which are 53% of the population in Manipur, they are being given ST status by the High Court of the Manipur. And this party, Kuki, which are in minority, they are protesting. They are protesting because, see, obviously, when the ST status would be given, there would be more reservation that would have been to be shared between the ST segment that has been given by the governments. So that's why Kuki tribes are saying that ST status should not be given to the Methi tribe, and the condition is really violent there, and army has been placed there. Before that, let us know some of the basics. uh, Manipur. It shares border with Nagaland, Assam, and Mizoram. It's a very crucial state with regard to the internal security of the country because it shares border with Myanmar also, which is recently in the Janta rule, the army rule basically. Niti is the official language. Mind you, it is the official language of the Indian Republic, not in the 8th schedule. जो हमारे 8th schedule में 22 languages हैं, ये उनका पार्ट नहीं है, पर इंडियन रिपब्लिक की ऑफिशियल लैंग्वेज है.
ये मैंने आपको बता दिया। 53% पॉपुलेशन है, तब भी स्टेट एसटी स्टेटस क्यों मिल रहा है? तो जो मीती ट्राइब है उसका क्या डिफेंस है? उसका ये डिफेंस है कि जब हम इंडिया से मर्ज हुए थे 1949 में, वी वर ऑलरेडी अ एसटी स्टेटस, वी वर ऑलरेडी गिवन अ एसटी स्टेटस। सो अब क्यों नहीं? वो तो बाद में रिवोक करा गया ना। और मीती ट्राइब का दूसरा जो रीजन है, दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, आइडेंटिटी, एंसेस्ट्रल लैंड, as they are vulnerable because of the illegal migration, both from Bangladesh and from Myanmar. We all know that uh, the refugee crisis in northeastern states is a very serious issue in Bangladesh, Myanmar, and other states. You have to, written it there. So this is it. So if they would be given ST status, it is obviously that they would be given more protection. They would be having more, I would say, facilities with respect to with respect to their daily living. So this is the main issue that is been the bone of contention. The army has been called on. Article 355 is being imposed. Article 355 and Article 356 they differ. You should be reading it from your static notes, but जो हम थोड़ा सा basic है वो cover कर लेते हैं. It is in the part 18 of the Indian Constitution. It empowers the union government to declare a state of emergency. It empowers the union government to declare a state of emergency. And second thing that is mentioned in the Article 355 is it is the duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbance. तो जो सेकंड वाला पॉइंट है ये यहाँ पर वैलिड है। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस ही तो हो रहा है, जो दो कम्युनिटीज आपस में झगड़ रही हैं, इसका एक इंटरनल डिस्टर्बेंस ही से हम रिलेट करेंगे। एंड इंश्योर दैट state government runs accordingly to the provision of the constitution. So this is written in the article 355. article 356 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि the article 356 is a extreme measure as compared to article 355. अगर आप आर्टिकल 356 लगाओगे तो all the power goes to the center, sorry president, but indirectly it goes to the center only. So they can make rules, then the state assembly might get dissolved. So it is kind of a very strict measure, and it also gives a negative connotation kind of a thing. So that is why president rule has not been imposed. So it also needs the approval of the parliament. So that is why it is kind of a, I would say, a very not a long process, but it gives a negative connotation. So this is it for now. If there would be any big update as such, if there would be any pact of peace agreement between the parties involved, and I'm sure it might happen anytime soon. So I would be updating it in the next video. Next news जो हमारे लिए यूजफुल है वो है लॉ कमीशन has suggested hardening the sedition law, that is raising the jail term to 7 years or life sentence. सेडिशन लॉ एज यू ऑल वुड नो, आप सभी को पता होगा, सेक्शन 124 ए के अंदर आती है. इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन सीआरपीसी. सो 1870 में ये लॉ बना था, सेक्शन 124 ए के अंदर आता है. रिसेंटली लास्ट ईयर यू ऑल वुड बी अवेयर, जून, आई थिंक जून 22, सुप्रीम कोर्ट had put a stay on it. What is sedition law? By words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, brings or attempt to excite disaffection towards government established by law. कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन वे में या स्पोकन वे में, क्योंकि उस वक्त 1870s के वक्त काफी नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ऑल्दो आईएनसी नहीं बना था, बट उससे पहले काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे जो एक्टिवली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब लिखना शुरू हो चुका था. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के टाइम पर इसको दबाने के लिए, क्योंकि उस वक्त मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग अगेंस्ट द ब्रिटिश ही लिखेंगे, तो ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसके खिलाफ ये कानून था. तो इसलिए उस वक्त बनाया गया था. A lot of debates have been happening, a lot of political controversies have happened, that whether a colonial law should be staying or not, and it is still there, although it has been put on a stay.
but it is still there. The Supreme Court has sought the response from the center, and currently, Law Commission has suggested some recommendations. First of all, see, this is the current status. I have already told you. Let's revise Law Commission first of all, then we will look on to the recommendations. Law Commission यार 1834 में बना था, सबसे पहला लॉ कमीशन इंडिया का बाय टीबी मैकॉले, जो मैकॉले कमीशन बना था. इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना ही किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है. It is just a simple executive body by an executive order, and it composes of legal experts to suggest the legal reforms in the country. And whenever it suggests, it is dissolved immediately. So, what are the recommendations by Law Commission with respect to Section 124A, that is sedition law? अभी तक क्या था, अगर आप सेडिशन लॉ के अंदर बुक करे जाते हो तो आपको 3 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. मगर अब जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट करा है वो कि आप जेल टर्म अप टू 7 इयर्स कर दो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो. बट आपके ट्रायल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नो एफआईआर unless inspector or above rank officer conducts a preliminary inquiry, then on the basis of that report, central government or state government can take the action or may act or register FIR. See, this is it. जब तक कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर है या उससे अबव रैंक का है, वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करता है और वो रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद ही उस इंसान के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है. बिना ऐसी कोई भी नहीं कर सकता. This is it. For the people who are writing mails, I really found something very useful in this article, which is the report also quoted the National Security Advisor Ajit Doval's speech to IPS officers कि जो सेडिशन लॉ है उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल भी होता है इंडिया में, just to please the upper authority or the upper power. See, civil society can be subverted, divided, and manipulated to hurt the interest of the nation to justify the need to retain the sedition law. This is it. And आपको मेंस में chances हैं आने के, तो you can write this in your answer. The next thing, the horrific accident that happened in the Odisha Balasore. More than 300 people are estimated to be dead, and I think above 500 people have been injured in that. So it has been one of the most horrific incidents in the last few decades, in a train accident, I would say, in the Indian history in the last 3-4 decades. So, what is the reason? Although the CBI inquiry has been asked by the railway minister, but as per prima facie, it looks like there was the failure in electronic interlocking system. You just need to know this. हमें इतना डिटेल में नहीं घुसना है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर नहीं देना है. We just need to know the terms, basic terms कि जो यूपीएससी पूछता है, electronic interlocking system. द कवच सिस्टम विच हैज बीन इन न्यूज कि इसमें कवच सिस्टम होता तो ये रुक जाती और ऐसा होता वैसा होता. द रेलवे मिनिस्टर हैज given the statement that even if the kavach system would have been there, it wouldn't have stopped from it wouldn't have stopped the accident from happening. So, बट जो भी हो, यहाँ पर मैंने लिखा है द ट्रेन्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट डिडंट हैड कवच. उनके अंदर कवच नहीं था. अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की सभी ट्रेन्स में कवच नहीं लगा है. ऑल्दो कवच क्या है ये हम पढ़ लेते हैं. इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही बना है. बाय ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, it provides protection by preventing trains from passing the signal at red and activates the train braking system automatically and avoids collision. I think कुछ इतना टफ नहीं है समझना. एक अगर ट्रेन जा रही है और यहाँ पर रेड सिग्नल है, कोई ड्राइवर अगर इसको स्किप कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसके एंटी ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे. इट वुड अवॉइड द कॉलिजन, जो कि आने वाली ट्रेन वहां से भी होगी. तभी तो रेड सिग्नल है ना. So this is it. But the prima facie it is looking that there was no
signal skipping as such in this incident. If the CBI inquiry is set up, more of a truth would be disclosed. Continuing that, coming to the economy, CAG report has been in the news, which highlighted that there have been decline in the funds, and the main reasons for the train accidents that happen in India. What the CAG highlighted is CAG, we all know, comes under Article 148. And what are the main reasons that are there for the train accidents? The derailments, the maintenance of tracks, the deviation of tracks, overspeeding, faulty signals. What are the initiatives that have been taken by the government? We talked about Kavach, and there is this राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो कि 2017 और 18 में बना था। इसका 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड था, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड था, जो कि यूज करा जाना था कि हम ट्रेन के ट्रैक्स में इंस्पेक्शन इंप्रूव करें, अपनी सेफ्टी वर्क बढ़ाएं, अपने जो ट्रैक रिपेयर्स हैं वो करें, और जो भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एचआर डेवलपमेंट है, वो करें। ये सब उसके लिए पैसा था। देयर आर बजटरी एलोकेशंस आल्सो, लेट मी शो यू। देयर आर approximately from 20,000 crore to 15,000 crore. देयर आर ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, आपको बजट से आता है 20 से 15,000 करोड़। और क्योंकि सॉरी और क्योंकि रेलवे का बजट भी अलग से होता है तो 5,000 करोड़ उससे भी आता है। बट रिसेंटली द आर्टिकल द कैग has highlighted that there has been decline in funds also. But 3 in the 4 accidents happen ड्यू टू derailments, जब ट्रेन पटरी से उतर जाती है। 75% रीजन यही है। कमिंग इनटू द नेक्स्ट वन, PLI scheme. Commitments cross initial plan of 1.97 lakh crore. They have reached 2.05 lakh crores, which is a good sign, I would say. ये हम सभी को पता है, कोविड के टाइम पर PLI स्कीम आई थी ताकि डिमांड रीजनरेट हो, कंजम्पशन बढ़े मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई थी बाय द गवर्नमेंट। इट वाज इन द, आई थिंक, इन द बजट ऑफ 2021 and 2022. Initially, it was planned 1.97 lakh crores, but now has breached the target and has reached 2.05 lakh crores. Currently, these are the sectors that are under the PLI scheme. There are various kind of promotions being given. आप अगर इतनी टर्नओवर प्रोड्यूस करते हैं या आप इतने सारे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इतनी कुछ अमाउंट की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। वी डोंट हैव टू गो इनटू द स्पेसिफिक डिटेल्स, बट दिस इज द मेन कोर PLI scheme. And if you ask the ministry, which is the ministry that is implementing it, there is no such specific ministry. कोई भी ऐसी नहीं है। इसको जब अप्रूव करा था तो ऑब्वियस सी बात है कैबिनेट ने करा था, और जो इनकी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज है वही करेंगी। देखिए, जैसे टेक्सटाइल है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मीटी करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिस्ट्री स्पेशलिटी स्टील है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील करेगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ IT करेगी, जो भी इसके अंदर आता होगा। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। तो रिस्पेक्टिव टू द सेक्टर्स, देयर आर मिनिस्ट्रीज दैट अप्रूव देम। There has been talks to also increase it, that the PLI should be increased to various sectors also, like 15, 16 more sectors that have been highlighted, I would say. So total 20-30 हो जाएगा. There were articles recently, but whenever that will happen, we will check it. One more issue that has been regarding the PLI is that जब तक सरकार आपको सब्सिडी देती है तब तक ही कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं तब तक ही चलती हैं, जब तक सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे ही ये रुकता है, द फैक्ट्रीज गेट क्लोज्ड, है ना, जो फैक्ट्रीज हैं वो क्लोज हो जाती हैं, एंड जो लेबर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो वहाँ काम करने वाले वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो हमें इसको भी देखना है। They, this is where it is mentioned that do the government regularly receives requests for the inclusion of new products in the PLI. It should not incentivize simple manufacturing process. The firms largely in assembling products, जो भी assembling products के अंदर जो firm आती हैं,
they disappear as soon as the government incentives disappear. जैसे ही गवर्नमेंट का इंसेंटिव जाएगा वैसे ही फर्म्स भी गायब हो जाएंगी। वो लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे आई वुड से शेल कंपनीज बन जाती हैं, जो भी होता है, बट दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। हम तो भाई इनिशियल पुश दे सकती है गवर्नमेंट, आगे तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा फर्म्स को। नेक्स्ट थिंग, डेट सीलिंग एग्रीमेंट in in news for a huge lot of a time, I would say. Or debt ceiling agreement is a very detailed topic which I have planned to make a video on soon. But आप इतना कर लो, इतना मैं आपको बता देता हूँ. Let's do the word breakdown. Debt ceiling. What is debt? Loan. Ceiling, upper limit. This means the upper limit for taking loans have been reached by the Biden administration. Now they need the support of their opposition, which is Republicans. Then they both need to agree on the deal, otherwise US will default on their loans. If the debt ceiling is raised again, which has been raised, which means the agreement has been done till 2025, the new limit is so. Now the Biden government can again borrow. Currently they are in 31.4 trillion debt on them, and now they can again reborrow. Otherwise, they would have to pay 31.4 trillion right now if they would have defaulted. But since they have again extended the limit, they can again take till 2025. I think this is till Feb 2025 because that is when the Biden administration would end. The new elections would happen in 2024, but 25 में जो होता है कि 2025 के फेब तक जो फाइनल ट्रांसफर ऑफ द पावर होता है वो फेब में होता है। तब तक के लिए ये बढ़ा दी गई है कि तब तक आप लोन ले सकते हैं। ऑल्दो आई वुड बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस वेरी सून। नेक्स्ट थिंग, आईआर। See, Turkey, which is in news, it comes in both Europe and Asia. It is a Eurasia nation, you can say, which shares boundaries within both the continents. It has been in news since last 2-3 years, I would say. पहली न्यूज तो we all know earthquake. Earthquake से हम कैसे relate कर सकते हैं? The plate that is in Turkey, which caused the earthquake, its name is Anatolia Plate. फिनलैंड और स्वीडन सिर्फ टर्की के अप्रूवल के लिए रुके हुए थे कि हमको टर्की अप्रूव करेगा तब जाकर हमें नेटो की जो मेंबरशिप है वो मिलेगी। ऑल्दो टर्की ने फिनलैंड के लिए तो अप्रूव कर दिया, बट स्वीडन इज स्टिल हैंगिंग along the wire, I would say. अभी भी उसको अप्रूवल नहीं मिला है। There are some apprehensions and agreements that needs to be reached between both the countries. So, although Finland has been included in the NATO officially, some I think 2-3 months ago only. One more thing that made Turkey in the news was Ukraine Green Deal that they did. जो ब्लैक सी है यहाँ पर कहीं पर यूक्रेन है। यूक्रेन रशिया वॉज नॉट अलाउइंग यूक्रेन टू शिप द वीट एग्रीमेंट्स, मगर टर्की ने वो डील ब्रोकर कराई। जैसे कि हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका जो मेन ब्रोकर है वो है यूएस, मगर यहाँ पर टर्की ने जो डील ये ब्रोकर कराई, सो इट वाज इन द न्यूज। इट वाज वेरी क्रूशियल डील, आई वुड से। बट यहाँ पर आपको क्या जानना है कि जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसिप अर्दोआन, he has came to the power for this third term and he has been power since 3 decades. पहले वो प्राइम मिनिस्टर भी थे कुछ टाइम के लिए, मगर अब वो प्रेसिडेंट हो चुके हैं थर्ड टाइम के लिए। तो he has been in power for a very long term. There was one more thing why Turkey was in news. Few years ago there was this Hagia Sophia mosque, sorry, museum, which was converted into mosque. It was converted into mosque. So there were a lot of controversies. UN also got involved in it, but nothing happened. It is currently a mosque. And वन मोर थिंग आई वुड से कि जो यूपीएससी है यार, देखो इस बार का प्रीलिम्स अगर आपने देखा है तो इट आस्क्ड कि स्विट्जरलैंड के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो क्या है। इट इज आस्किंग दिस काइंड ऑफ वेरी वेग स्टेटमेंट्स। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नेटो की
सबसे मेजर पावर मतलब सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी किसकी है, तो वो ऑब्वियसली आप बात कहोगे यूएस की है। मगर अब सेकंड अगर कोई पूछेगा तो आप कहोगे शायद फ्रांस या जर्मनी में भी, बट दिस इज रॉन्ग आंसर, इट इज टर्की। This is the short statements that UPSC is now asking. So recently I saw this statement in it. The country of 85 million controls NATO's second largest army. This is the thing that really captivated me. तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, because these are the statements like UPSC is asking these kind of statements only. This is the map of the Turkey that is really important for us. Very crucial location globally, geopolitically, and we all know this map, so there's nothing much to discuss about it. Mediterranean Sea, Black Sea, this is a very crucial area, and this is the reason why Russia feels that Turkey might any day stop us from importing. We would say कि import कुछ भी अगर रशिया को import करना है तो वो टर्की उसे रोक सकता है, क्योंकि most of the सामान रशिया का यहीं से आता है. So moving into the next thing, China. China announces plan to land astronauts on the moon by 2030. यूएस का प्लान है 2025 तक. So a new space race has begun. This is it. ऑल्दो ये हमने जान लिया, बस इतना ही था अभी हमें जानने का. यूएस के जो मिशन का नाम है वो है आर्टेमिस 3, और इंडिया की जो मिशन का नाम है वो है गगनयान. चाइना ने अभी कोई भी नाम अनाउंस नहीं करा है, तो हम थोड़ा सा इंडिया का मिशन देख लेते हैं जो कि अगले ही साल होने वाला है. गगनयान इज द मिशंस नेम. इट इज expected to launch by 2024, where we would be sending the astronauts to the moon. तो अभी सबसे पहली लाइन में हम ही खड़े हैं, इंडिया है, सेकंड नंबर पर यूएस है 2025 पे, और थर्ड है चाइना. इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हम एक ह्यूमनाइड रोबोट जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस, ये एक ह्यूमन जैसे ही है, हम इसे पहले एक अनमैन्ड क्रू फ्लाइट में छोड़ेंगे. इसका नाम है व्योम मित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फॉर टेस्टिंग पर्पसेस इन द अनमैन्ड फ्लाइट. It will simulate the exact human functions in the space and check whether the testing systems are working right. It would just be a test flight. That अगर कुछ भी आपकी प्री प्रिपरेशंस में कुछ कमी है तो वो ये व्योम मित्र है जो कि जस्ट लाइक ए ह्यूमन है, इट इज अ ह्यूमनाइड रोबोट, वो उस वक्त हमको पता लग जाए अगर कुछ कमियां हैं, ताकि जब अगली बार इंसान जाए अगली फ्लाइट में तो उस वक्त हम जो ये कमियां हैं इनको दूर कर सकें. दिस इज इट, बस इतना है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारा एडिटोरियल. इस पिछले एक हफ्ते में मुझे बस एक दो एडिटोरियल ही काम के लगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. द फर्स्ट वन वाज न्यूट्रिशन इन अ वार्मर वर्ल्ड बाय मिस्टर अशोक गुलाटी, एंड he writes really good articles on agricultural space. तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो रिसेंटली G7 समिट हुई थी जापान में, जिसमें इंडिया भी इनवाइटेड था, वहां पर ये हुआ कि एक एक्सेलरेशन एजेंडा अडॉप्ट करा गया. इसमें ये कहा गया कि आप 2040 तक अपना जो भी नेट जीरो इमिशंस करने हैं 2040 तक करिए. वैसे तो सब सब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने 2050, 2060, 2070 इस तरीके का टारगेट दे रखा है, मगर इस समिट में कहा गया कि 2040 तक आप अपने नेट जीरो करिए. काफी एम्बिशियस टारगेट है. हमें पता होना चाहिए कि और कंट्रीज के टारगेट क्या है. यूएस, ईयू ने 2050 तक टारगेट दिया है. मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड countries have given 2050 target. China and Russia, they have given the target for 2060. And our country India, as you all know, that Panch Amrit 2070 net zero. तो ये सब जो हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इन सब का टारगेट है. ऐसा इसमें क्या है कि जो क्लाइमेट एमिशंस हो रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से कि ये इंडिया पे काफी इम्पैक्ट करेगा. इट वुड बी अ डबल वैमी. व्हाई? Because first of all, our 45% of the workforce is involved in the agriculture. 45% हमारे जो लोग हैं काम करने वाले वो एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व हैं. और दूसरा, जो हम
वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं, जो हमें टैग मिला है, हमें इतने सारे लोग को खाना भी तो खिलाना है। तो एवरीवन इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। चाहे आप एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तब भी आपको अफेक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज, और अगर आप नहीं हो तो भी आपको फूड के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो ही ना। तो इस वजह से आपको दोनों तरफ से, इंडिया को तो बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि वर्कफोर्स भी इन्वॉल्व है और पूरी पूरी पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना है। हमारी ग्रेनरीज भी फुल रहनी चाहिए, हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए, हमारे पास सरप्लस स्टॉक होना चाहिए, जैसे कि कोविड के टाइम पर हमारा जो काम आया था उस वक्त, उस टाइम पे। तो दिस इज इट। इसमें कहा गया है कि पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द टू ऑफ द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर इंडिया। एक डब्ल्यूएमओ ने ये कहा है कि जो टारगेट है 2023 से 2027 में, जो ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट है, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इट वुड ब्रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट दैट हैज बीन गिवन इन द पेरिस क्लाइमेट समिट, जो भी वो हुआ था 2016 में। उसमें ये था ना कि 2000 जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स है उससे हम 1.5 डिग्री तक आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी इससे ब्रीच हो जाएगा, तो इसमें ये बात कही गई है। सो इन्होंने कहा है कि अब क्या कर सकता है इंडिया। इंडिया इंडिया इज फेसिंग अ डबल वेमिंग, दोनों तरफ से इंडिया फंसा हुआ है। तो इंडिया को, आप अगर अशोक गुलाटी जी के आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ही ऑलवेज रिकमेंड्स इंक्रीजिंग द बजटरी एलोकेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च करिए एग्रीकल्चर में, आप डेवलपमेंट करिए, आप नई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करिए। इनका ये एक थीम रहता है, मैं काफ़ी टाइम से इनका आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। इनका थीम रहता है कि आप सब्सिडीज़ कम करिए, फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ कम करिए, पावर सब्सिडीज़ कम करिए, आप आर एन डी में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। तो इसमें भी इन्होंने यही कहा है। इसमें इन्होंने नया टर्म दिया है, आर एन डी के बदले ए आर डी। ए आर डी को आप एक्सटेंड करिए। ए आर डी क्या है? ए आर डी है एग्रीकल्चरल रिसर्च डेवलपमेंट एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। ये एक नया टर्म है, नॉट मतलब है, ठीक है, आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, लेकिन आर एन डी वुड बी मच बेटर। आपको फिर ये पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आप ए आर डी में रिसर्च करिए। इन्होंने कहा है कि इट इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चरल आर एंड डी हैज yielded much better results than giving subsidies, गिविंग पावर सब्सिडीज और रोड्स एजुकेशन, इन सब में। क्योंकि आर एंड डी करके जो नई नई टेक्नोलॉजीज निकलती हैं उनसे जो हमें बेनिफिट होता है, नैनो टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे जो हम बनाते हैं चीज़ें, हम ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स बनाते हैं, काफ़ी सारी सीड्स जो हम बनाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स बनाते हैं, तो ये आर एंड डी के थ्रू ही तो हो रहा है। तो आर एन डी में आप इन्वेस्ट करिए। इनका बस पूरे आर्टिकल का ये सार है, लेकिन मैं तब भी आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ए आर डी से अभी तक हमने क्या अचीव कर रखा है? हमने डेवलपमेंट ऑफ हीट रेजिस्टेंट सीड्स बना ली हैं। प्रिसाइशन एग्रीकल्चर, जो हम जो स्पेस का डेटा यूज़ करके और जो इंडिविजुअल डेटा यूज़ करके हम सिर्फ प्रिसाइज इनपुट डालते हैं और फिर एक उससे एग्जैक्ट उतना ही आउटपुट आता है, वो दैट इज प्रिसाइशन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मीन्स हम फर्टिलाइजर्स को लिक्विड फॉर्म में प्लांट्स में फीड कर रहे हैं। इससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। आप फर्टिलाइजर भी डाल दे रहे हैं, आपका इरिगेशन भी हो जा रहा है। तो पानी में ही फर्टिलाइजर्स मिला दिए, इट इज़ अ सॉल्यूबल थिंग। तो दैट इज फर्टिगेशन। नैनो फर्टिलाइजर्स, हम इस बार हमारी नैनो यूरिया बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इफ्को के द्वारा। नैनो यूरिया, इट स्प्रेड्स मोर एंड इट हैज़ मोर यील्ड्स देन अ नॉर्मल यूरिया। ज़्यादा फैलती है ना, नैनो है, क्योंकि नैनो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से। तो दिस इज इट। और इन्होंने कहा है कि जो हमारा बजटरी एलोकेशन है वो क्रॉप हस्बेंड्री सेक्टर में काफ़ी टाइम से बढ़ा है, लेकिन सॉइल, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इनमें हमारा जो बजटरी एलोकेशन है, जो सरकार इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है इसकी आर एन डी में, ये घटा है। और ये काफ़ी क्रूशियल सेक्टर हैं, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स से सबसे ज़्यादा ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं वो होते हैं। दीज सेक्टर्स नीड्स मोर ए आर डी बिकॉज दे कंट्रीब्यूट 54% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। मीथेन निकलता है, नाइट्रोजन इमिशंस होते हैं प्लांट के एक्सक्रीशन से, एनिमल्स के एक्सक्रीशन से, इन सब से। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो हमें इनका बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। बस इन्होंने लास्ट में यही कहा है कि we need to double the budgetary allocation, reduce the fertilizer and power subsidy, and in instead of that invest for ARD. That was it. बस इतना ही था इस पूरे आर्टिकल का। The next article was
oil reserves in salt caverns. Recently, Government of India is exploring this technology to be implemented in Rajasthan. ना अभी क्या होता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं वो तीन मेन जगहों पे जो हैं ये हैं विशाखापट्टनम में, मंगलूर में और पदूर में। ये दोनों जगहें कर्नाटका में है और ये आंध्र प्रदेश में। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एज यू ऑल नो कि जब अगर कुछ वॉर हो जाए या फिर कुछ भी इमरजेंसीज हो जाए, कोविड के टाइम जैसा कुछ हो जाए, तो ऐसे में जो पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स फॉर बफर स्टॉक एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी, एक बफर स्टॉक रहना चाहिए पेट्रोलियम का, तो वो है। इंडिया की जो अभी करंट कैपेसिटी है वो है 39 बिलियन बैरल्स। ये अप्रोक्सीमेटली 9 दिन तक हम कहीं भी बाहर विदेशों से इंपोर्ट ना करें तो हम 9 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें अगर हमारी जो ओएमसीज कंपनी है उनकी जुड़ जाए तो वो उनकी 64 डेज की कैपेसिटी है। तो ये टोटल 64 डेज प्लस 9 डेज अराउंड 75 डेज हो गया। तो आप मान सकते हैं कि 2 से ढाई महीना हम अगर कुछ भी ऑयल इंपोर्ट ना करें बाहर से तो हम 2 से ढाई महीना बिना किसी ऑयल इंपोर्ट के चल सकते हैं। वेरस यूएसए जिसकी आई वुड से कि बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है, 727 मिलियन बैरल्स है, वो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सेल्फ कवन टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें ये है कि ये है देखिए, अनलाइक अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स जो कि एक्सकेवेशन के थ्रू हम बनाते हैं, खोद खोद के जो हम बनाते हैं, लेकिन सेल कैवर्न्स में क्या होगा, सेल कैवन माइनिंग में हम सॉल्यूशन माइनिंग यूज करेंगे। सॉल्यूशन माइनिंग में जो हमारी सॉल्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम वाटर पंप करेंगे। वाटर पंप करने से क्या होगा, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी। जो घुलकर जो नमक घुलेगा उस सॉल्यूशन को हम बाहर निकालेंगे और उसमें हम पेट्रोल रखेंगे अपने, जो भी हमारे पेट्रोल होगा, डीजल जो भी होगा, क्रूड ऑयल हम उसमें स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा कि इट इज़ काफ़ी सिंपल और फास्टर टेक्नोलॉजी है और काफ़ी कॉस्ट कॉस्ट इसमें कम है एज कम्पेयर टू जो हमारी नॉर्मल है एक्सकेवेटेड रॉक कैवर्न्स है, उससे हमारी कम कॉस्ट है इसमें। दिस इज इट। एक पॉइंट और है कि जो सॉल्ट होता है उसकी ऑयल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, तो उससे ये भी होगा कि जो हमारा ऑयल हम स्टोर करेंगे वो कहीं पर इट विल एक्ट एज अ इम्परमिएबल बैरियर अगेंस्ट अदर हाइड्रोकार्बन्स और लिक्विड्स, इनके खिलाफ ये एक्ट करेगा एज अ इम्परमिएबल बैरियर। दिस इज इट, बस इतना ही है। अगर ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी, अभी राजस्थान में इसका चल रहा है जोरों शोरों से, जो हमारा ढूंढने का काम चल रहा है राजस्थान में एक्सप्लोर करी जा रही है टेक्नोलॉजी, तो अभी बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा कुछ अगर अपडेट होंगे तो आई विल अपडेट यू। द नेक्स्ट थिंग वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Only one article I found it really useful. Polygenic risk score. This has been news. It is a genetic test specifically for young people to determine the future course of treatment and also to identify the heart attacks long before people have them. तो जो हमारे जेनेटिक्स हैं उनका यूज करके हम इसमें जो हमारा पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर है, ये जेनेटिक वेरिएशंस को देखकर ये बताता है कि भाई एक तरीके से कह सकते हैं कि गेस करता है कि हम इफ द पर्सन इज प्रोन टू हार्ट अटैक और इस तरीके से। बस इतना ही था। हमें बस देखिए, हमें ज़्यादा नीट का पेपर तो देना नहीं है, हमें यूपीएससी का देना है। हमें बस नॉर्मल पता होना चाहिए पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर क्या है। यूपीएससी ने इस बार, हम कोई प्रोसेस में नहीं जाता यूपीएससी की कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इस बार एरियल मेटाजेनोमिक्स का क्वेश्चन आया था इस बार। सो दे जस्ट वांटेड टू नो द प्रोसेस क्या होता है। इट इज अ जेनेटिक टेस्ट, बस हमें इतना जानने की जरूरत है। और उसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन दैट इफ, मतलब यंगर एज में ही पता लग जाए कि अगर कोई इंसान हार्ट अटैक्स के लिए प्रोन तो नहीं है। बस इसका इतना ही पर्पस है। वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स। बस दिस इज इट। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बट आई डेंट फाउंड इट यूजफुल। दिस वॉज इट। 29 मई से लेकर 4 जून तक ये हमारा एक छोटा सा समरी था इंडियन एक्सप्रेस का। थैंक यू, थैंक यू फॉर bearing with me. I don't know what is the length of the video, but thank you for bearing with me for this 35-40 minutes. And from next time I'll be making videos timely. I would try कि जैसे ही हफ्ता खत्म हो रहा है तो उसके 1 या 2 दिन में I would be uploading the videos, and any suggestions are most welcome, I would say.
Any suggestions are most welcome. Any kind of content you want me to make, any kind of videos you want me to make, you can please comment on it on that on below. And thank you for listening.